if I Hello, keep everyone. the Good afternoon, everybody. I am Priyanjali, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on psoriasis. Psoriasis, a condition in which skin cells build up and form scales and itchy dry patches. Psoriasis is thought to be an immune system problem. Triggers include infection, stress, and cold. The most common symptom is a rash on the skin, but sometimes the rash involves the nails or joints. It can start at any age, but most often develops in adults between 20 to 30 years old and between 50 to 60 years old. It affects men and women equally. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about psoriasis, its types, how we can prevent it, the kind of tests required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Anju Jha. She's a MBBS, MD dermatology, venereology, leprosy, dermatologist. Dr. Anju Jha is a dermatologist in Vaishali, Ghaziabad, and has an experience of 24 years in this field. Dr. Anju Jha practices at Medieval Skin Clinic in Vaishali, Ghaziabad, and Medieval Skin Clinic in Vasundhara Enclave, Delhi. She completed her MBBS from Medical College Calcutta in the year 1996 and MD Dermatology, Venereology, and Leprosy from Government Medical College and Rajendra Hospital, Punjab University, Patiala in the year 2021. A warm welcome to Dr. Anju Jha. It's a pleasure, doctor, to have you with us today, and we are going to discuss on a very important topic, which is psoriasis. So, the first question for you is, what is psoriasis? psoriasis is a skin disease which is a chronic immune mediated inflammatory skin condition whereby we see red patches, scaly patches on different parts of the body. So, what happens is the skin turnover increases, the skin cell Right. turnover increases. So, the Hmm. layers which usually come in 20 to 25 days time, usually the skin renewal time is reduced, and a lot of scaly patches and redness are seen on different aspects of the body. It can be limited, it is usually seen in the extensor aspects like elbows, knees, and on the back, on the trunk, and at times the scalp can be infected alone or along Hmm. with the other body areas, or even the nail can be affected. राइट राइट सो डॉक्टर जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जितने भी हम लोगों को जानते हैं सबसे बड़ी बड़ी समस्या ये है कि हम कंडीशन या हो बीमारी हो उसे हम पहचान नहीं पाते हैं तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में कैसे कोई समझेगा कि ये सोराइसिस है क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्योर करना बहुत इजी होता है डॉक्टर्स के लिए भी तो कैसे कोई समझे कि ये बदलाव जो स्किन में है ये सोराइसिस है आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स क्या है हाँ, इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है कि एक तो ये कहाँ पे हो, तो ये जो लीजन्स होते हैं ये आपको लगेगा जैसे स्केल्स जैसे होते हैं, स्किन की परत जैसे लेयरिंग सी हो जाती है, और गोल हम्म गोल चकत्ते से लीजन्स होते हैं। और आपको हम्म लगेगा कि थोड़ी बहुत आपकी खारिश आप करते हो तो थोड़ी सी स्केलिंग सी होती है, वाइट वाइट स्केल्स उससे निकलती होती हैं। और कई बार हल्की हम्म सी इचिंग हो सकती है, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है स्क्रैच करने पे, और आपको लगेगा कि इन हम्म जगह पे ये प्रॉब्लम कभी होता है और कभी अपने आप ठीक हो जाता है। और अक्सर ये एल्बोज में, नीज में और स्कैल्प में होता है। आपको लगेगा कि हाँ, ये पहले तो हुआ था मुझे और मैंने कुछ मॉइस्चराइज किया और हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि जब ये चीज़ें बढ़ जाएं तो आपको लगेगा कि आप खुद से उसकी इलाज कर रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो कंपेयर टू राइट अदर लीजन्स क्या होगा इनमें, इनमें एक स्केली लीजन्स होती हैं। तो वो एक हम्म डिफरेंशियल पॉइंट होता है जिसको हम सिल्वरी स्केल्स कहते हैं, वाइट सिल्वरी स्केल्स जैसे होता है। राइट 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 डॉक्टर ऑल्सो मैं बहुत लोगों को मिली हूँ अपने लाइफ में जिनको ड्राई स्किन की बड़ी प्रॉब्लम है
तो ड्राई स्किन मतलब सीरियस ड्राई स्किन के प्रॉब्लम मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ब्लैक कलर का कपड़ा अगर पहने, उसको खोलने के बाद ऐसे फ्लेकी स्किन निकल रहा है कपड़े के साथ, आपको दिख रहा है ब्लैक में फ्लेक्स। तो इतनी ज्यादा समस्या जिनकी ड्राई स्किन की है, क्या वो भी ड्राई स्किन को सोराइसिस के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं? कोई मतलब संबंध है हाँ, ड्राई बिल्कुल कर स्किन सकते जिनका हैं। स्पेशली हाँ, है? थोड़ा-सा जैसा आपने कहा कि ड्राई स्किन, तो किसी के अगर हम्म। ड्राई स्किन है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है? तो ड्राई हम्म। स्किन होता है कि जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉइड, उनकी भी स्किन ड्राई होती है। विद एजिंग जनरल लोगों की स्किन थोड़ी-सी ज़्यादा ड्राई होने जी। लगती है। और जी। ये भी है कि जो सोरियासिस की जो प्रॉब्लम है वो ड्राई स्किन या ड्राई स्किन इट इज़ अ ड्राई स्किन कंडीशन मेनली। तो जब भी ठंड हम्म। ज़्यादा होती है, जब मौसम बदलता है, जब ह्यूमिडिटी कम होती है, तब सोरियासिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा जी। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की जिसको ड्राई स्किन हो, उनको सोरियासिस की प्रॉब्लम हो। जी। जी। तो डॉक्टर अगेन बात करेंगे सोराइसिस की। तो अगर सपोज ड्राई स्किन एक कारण आपने कहा, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? इसके कॉज का कारण क्या हो सकता हाँ, है? ये जैसे कि एक किसी भी डिजीज के तरह ना सोरायसिस में भी इट इज अ इंटरप्ले ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। एक होता है जेनेटिक हम्म। प्रीडिस्पोजिशन। आपके फैमिली राइट। हिस्ट्री में इट इज देयर, सोरियासिस इज देयर, या तो आपके पेरेंट्स को है या आपके अंकल को है या किसी को है, देन यू आर मोर लाइकली टू गेट दिस प्रॉब्लम। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि राइट। सिर्फ आपके जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है और आपको सोरियासिस हो जाएगी। फिर व्हाट कम्स इनटू प्ले आर द एनवायरमेंटल जी। फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में होता है स्ट्रेस हो गया, हम्म। कोई इन्फेक्शन हो गया, कई बार हम्म। अपर यूआरआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो सोर थ्रोट हुआ, उसके बाद भी गटेड लीजन्स ऑफ सोरियासिस हो सकते हैं। या फिर किसी को मेंटल स्ट्रेस ही हम्म। बहुत दिनों से चला आ रहा है, तब हो सकता है कि आपकी ये डिजीज प्रेसिपिटेट हो जाए। और इनमें होता क्या जी। है, जी। इन सब के साथ एक इम्यून डिसरेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी शुरू हो हम्म। जाता है। इम्यून डिसरेगुलेशन में क्या होता है, कुछ टी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, वो एक्टिवेट हो जी। जाती हैं। अ पार्ट ऑफ द टी सेल्स इज एक्टिवेटेड, और उसकी वजह से प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होती है हमारी बॉडी में, जो कि बढ़ जाती हैं, और उसके वजह से चेंजेस शुरू हो जाते हैं स्किन में और एपिडर्मल सेल्स में। हम्म। राइट। राइट डॉक्टर, जेनेटिक डिस्पोजर प्रीडिस्पोजर आपने कहा कि होने से चांसेस हो सकता है। तो जिनके परिवार वालों में से किसी को है सोराइसिस और वो लोग देख रहे हैं ये, तो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकते हैं? क्या क्या प्रिवेंशन वो लोग अपना सकते हैं कि उन्हें ना हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, तो एक तो आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल ना टेंशन रखें कि आपको सोरियासिस हो ही जाएगी। लेकिन आपके जी। फैमिली में चूंकि है, तो कुछ चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस वो काफ़ी सही होनी चाहिए, वेट गेन नहीं राइट। होना चाहिए, यू शुड अवॉइड हम्म। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, यू शुड हैव अ हेल्दी हम्म। लाइफस्टाइल एक फॉलो करना राइट। होता है। तो इन सब राइट। चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस अगर इन सब के बावजूद भी आपको कभी भी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो यू शुड हम्म। कंसल्ट अ डॉक्टर। अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उनकी सलाह ज़रूर लें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, और अपनी स्किन को राइट। मॉइस्चराइज़ रखें। हाँ जी। राइट। राइट। राइट डॉक्टर, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें, हम हमेशा कहते हैं सभी को कि एक बस एक चीज अगर आप लाइफ में अपनाते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, इससे बहुत सारे बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। काफी सारी समस्याएं कम हो जाती हैं। और जिस चीज का हमें हमेशा डर लगा रहता है, हॉस्पिटल जाने का और डॉक्टर्स को विजिट करने का, एक बहुत बड़ा डर है हमारे मन के अंदर कि कुछ भी हो जाए, बस हॉस्पिटल ना जाना पड़े। हॉस्पिटल में तो जाना पड़े, शायद बिल्कुल। एक एक छोटा-सा चेंज, एक छोटा-सा बदलाव जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने के बारे में आपने कहा अभी, इससे ये सारी समस्याएँ दूर हो सकती है। तो डॉक्टर, हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या आता है? गुड फूड, अच्छी नींद, पानी का इम्पोर्टेंस भी हमें बताइए। सोरायसिस में वाटर इंटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या ज़रूरी है भी या नहीं? हाँ, तो जैसे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का ना, अब इतने आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, व्हाट वी हैव सीन हुँ। दैट द पेशेंट रिपीटेडली आस्क कि ये ठीक तो हो जाएगा ना, कम तो हो जाएगा ना। हुँ। सो माय आंसर हुँ। टू हुँ। ऑल द पेशेंट्स इज द सेम, कि फॉलो हेल्दी लाइफ़स्टाइल, सो दैट आपकी हुँ। दवाइयों की नीड कम से कम हो। तब अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आपका खान पीन ठीक है, आपकी स्ट्रेस लेवल्स कम है,
उसके लिए आपको जो जो चीज़ें करनी चाहिए उसको अच्छे से फॉलो करें। और आपने पूछा हाइड्रेशन की बात, तो सोरियासिस में क्या अब हर चीज़ में गुड हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और भी एक चीज़ है, कई बार लोग सोचते हैं कि आप ज़्यादा पानी पीते हो तो आपकी ड्राई स्किन बेटर हो जाएगी। हाँ, आपकी हाइड्रेशन बेटर हो जाएगी, लेकिन ड्राई स्किन के लिए फिर भी आपको एक्सटर्नल इमोलिएंट्स या मॉइस्चराइजिंग लोशंस की हेल्प तो हम्म। लेनी है। जी, जी। डॉक्टर, जब बात की है मॉइस्चराइज़र की आपने, तो चलिए स्किन केयर के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं हम। तो क्या स्किन केयर रेजीम रहता है पेशेंट्स फॉर सोरायसिस? सनस्क्रीन का इम्पोर्टेंस क्या है? आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं मार्केट में कि सनस्क्रीन, आप मॉइस्चराइज़र लगाओ, नहीं लगाओ, आप स्किन केयर रेजीम फॉलो करो, नहीं करो, पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। तो क्या-क्या स्किन केयर रेजीम हम तो अपना सकते हैं फॉर हाँ, पेशेंट्स सफरिंग? जैसे सोरियासिस वाले पेशेंट्स में वी आर मोर अबाउट मॉइस्चराइजिंग। तो सोरियासिस राइट, वाले पेशेंट्स में हम सन प्रोटेक्शन के लिए सच बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करते हैं, राइट, स्पेशली इस कंडीशन में। अगर पेशेंट मेरे पास जी, झाइयाँ लेके आए तो ऑब्वियसली सनस्क्रीन इज द फोरमोस्ट थिंग टू डू। सिमिलरली इफ दे हैव राइट। सोरियासिस देन मॉइस्चराइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, उसमें भी हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आपको पूरे साल मॉइस्चराइज करना है। चाहे अभी जैसे बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो आप मॉर्निंग में चाहे ना भी करो, जब आप काम पे जा रहे हो ना भी करो, लेकिन जब आप अपने एसी में बैठे हो तब ज़रूर से मॉइस्चराइज कर लिया करो। अच्छा, जी, और सन की जहाँ तक बात हो तो सोरियासिस में थोड़ा सा सन एक्सपोजर इज सेड टू बी गुड। सो इट इज़ नॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा सन प्रोटेक्शन लो, लेकिन ठीक है, आप नॉर्मल जैसे फेस पे सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। राइट। डॉक्टर, ऑल्सो आजकल बहुत सारे मार्केट्स में स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लोग बहुत अपनाते हैं आजकल। सभी को कोरियन स्किन, ग्लास स्किन चाहिए, उसके लिए व्हाट नॉट दे आर यूजिंग, जो दिख रहा है वही यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सोरायसिस, वो रेटिनॉइल ऑयल, विटामिन सी और क्या-क्या व्हाट नॉट, आर दोज़ सेफ? क्या वो अपने स्किन केयर रेजिम में वो सब ऐड कर सकते हैं? सोरियासिस वाले पेशेंट्स के अगर फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम उन्हें कहेंगे कि एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर फेस पे अफेक्टेड है तो भी इट इज़ ओनली अ सनस्क्रीन, अ गुड सनस्क्रीन एंड अ गुड मॉइस्चराइज़र विच विल हेल्प। और एक हुँ, आपके, हाँ, फेस वॉश इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वो आपके हुँ, फेस के हिसाब से होना चाहिए। इफ़ योर फेस इज़ ड्राई यू शुड यूज़ अ माइल्ड फेस वॉश और नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है? राइट। और इसके अलावा जो ग्लास स्किन और कोरियन स्किन के लिए जो आप एक सीरीज में 4-5 चीज़ें लगाते हो, वो ऐसे तो बहुत ज़रूरी नहीं होता है। और कई बार क्या जी। होता है कि आप गलत तरीके से, इंडियन स्किन इज़ एट टाइम्स टी ज़ोन कैन हुँ, बी ऑयली, बाकी स्किन कैन बी ड्राई। सो हुँ। इफ यू आर अप्लाइंग टू मेनी थिंग्स एक्चुअली यू कैन मेक मैटर्स वर्स। सो आई थिंक you should choose your products properly. राइट, राइट, राइट। एज़ वी ऑलवेज़ से कि कुछ भी लगाने से पहले मेक श्योर यू सजेस्ट, आप कोई एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं, तो एक्सपर्ट की सलाह ज़रूरी है। वेल, मूविंग अहेड डॉक्टर, आपने फेस वॉश के बारे में बात किया, सो हाइजीन के बारे में मुझे याद आया। हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है सोरायसिस में? ऑल्सो जिनके घर पे हैं वैसे पेशेंट्स, उनके लाइफ में हाइजीन का कोई इम्पोर्टेंस है? ऑल्सो कंटेजियस है कि नहीं सोरायसिस, ये भी हमें बताइए? हाँ, एक तो सोरियासिस इज़ नॉट एट ऑल कॉन्टेजियस, ये हर किसी को जानना चाहिए। हालाँकि कई बार होता है कि स्किन एंड सोरियासिस वाले पेशेंट्स की स्केलिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्केल्स बहुत हुँ, ज़्यादा झड़ रहे हैं। तब ऐसा हो सकता है कि हाँ, थोड़ा-सा सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ सोरियासिस इज़ अ नॉन कॉन्टेजियस प्रॉब्लम। आप एक से दूसरे को फैल नहीं सकता है, छुआ-छूत से नहीं फैल जी। सकता है, आप उनके साथ उठ-बैठ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, राइट। डॉक्टर, हमें पता है कि कोई भी स्किन में बदलाव हो, शरीर में बदलाव हो, डाइट का एक बहुत महत्व रहता है। तो क्या डाइट फॉलो करना चाहिए फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग, या जिनको होने की संभावना है उन्हें भी? हाँ, तो इसमें ना क्या है कि आजकल सोरियासिस में वी आर वेरी जो भी पेशेंट सोरियासिस के साथ आता है हमारे पास, चाहे उसको एक जगह प्रॉब्लम हो या अनेक जगह हो, उसकी सिवियरिटी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कोई भी हो, तो हम उनमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उन जी, इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादातर हम लोग एक लिपिड प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
जिसमें हम पेशेंट को स्क्रीन करते हैं कि उनको कोई डिस्लिपिडीमिया है कि नहीं। डिस्लिपिडीमिया हम कहते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल उनकी ज़्यादा तो नहीं है, उनकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ी तो नहीं है, उनकी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहीं कम तो नहीं है। तो इन सब टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को ये इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर है, या फिर ज़्यादातर इन प्रॉब्लम्स में या पेशेंट को जिनको मॉडरेट टू सीवियर होती है उनमें या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पाए जाते हैं या ओबीज होते हैं, वेट ज़्यादा होता है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स में हम लोग थोड़ा सा डाइट पे हम लोग बोलते हैं कि इट शुड बी अ वेल बैलेंस्ड डाइट। आपको कार्ब्स और फैट हिसाब से लेना है। प्रोटीन डाइट यू कैन इम्प्रूव, यू कैन टेक बेटर। एंड प्रोसेस्ड फूड शुड बी अ कंप्लीट नो। कोई भी चीज जो पैक्स में होता है या प्रोसेस्ड फूड होता है वो बिल्कुल उसकी मतलब उपयोग बिल्कुल ना करें। जी, जी, जी। डॉक्टर, मूविंग अहेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। अभी इनोवेशन बहुत आ गया है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस्ड है। आई एम श्योर कि पहले जो ट्रीटमेंट्स सोराइसिस के लिए अवेलेबल थे, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है। तो क्या-क्या ट्रीटमेंट्स अपनाते हैं आप ऑन अ डेली बेसिस फॉर द सेम? हाँ, देखिए ऐसा है कि सोरियासिस के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि उनको कितना प्रॉब्लम है। उनका एक जी, एक या 2 जगह प्रॉब्लम है, माइल्ड है वो प्रॉब्लम या मॉडरेट है या फिर कई जगह है या फिर काफ़ी मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। उस हिसाब से हम अपनी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि कुछ हम जिसे कहते हैं टॉपिकल लगाने वाली दवाइयाँ। अगर 1 या जी, 2 जगह पे होता है तो हम लगाने वाली दवाई से कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा हिस्से में प्रॉब्लम है तो फिर हमें ओरल मेडिकेशंस भी देना होता है। द गुड जी, थिंग इज़ कि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। अब उन पेशेंट्स हुँ, को किस पेशेंट को कौन सी ओरल मेडिकेशन शुरू करनी है, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड द सिवियरिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड पेशेंट को कुछ और कोमॉर्बिडिटीज हैं कि नहीं है। पेशेंट अगर ओबीज है, पेशेंट को अगर डायबिटीज है, पेशेंट को अगर बीपी की प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ओरल मेडिकेशन उसके लिए सबसे ठीक है। ओरल मेडिकेशंस में अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि मिथोट्रिक्सेट है, एप्रिमिलास्ट है, साइक्लोस्पोरिन है और रेटिनॉइड्स है, एसिट्रिटिन हम लोग देते हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ हैं। और उससे भी बढ़कर अगर कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इन्वॉल्व है और बार बार ट्रीट करने के बाद भी वो दोबारा से रिलैप्स कर रहा है, तब हमारे पास आज के डेट पे बायोलॉजिक्स भी है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। और ये साइटोकाइंस को प्रिवेंट करता है, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को है उनको प्रिवेंट करता है। और इस प्रकार हमारे पास खूब सारी चीज़ें हैं देने को। लेकिन ये कौन सा देना है, किस पेशेंट को कौन सा चीज़ देना है, ये इसकी सलाह तो पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास आके लेना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने कह दिया डॉक्टर, ये हमेशा हम कहते हैं। ऑल्सो अगला सवाल भी थोड़ा-सा रिलेटेड होने वाला है। काफ़ी सारे पेशेंट्स कुछ भी बदलाव, कुछ भी चेंज हो, पहले तो वो पड़ोसी की सलाह लेते हैं, नहीं तो घरवाले की सलाह लेते हैं और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो वो केमिस्ट की सलाह लेते हैं, फार्मेसी में जाते हैं और बोलते हैं कि ये कंडीशन है, कुछ दे दो। तो ऐसे कितने केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पेशेंट ऑलरेडी कुछ ट्रीटमेंट अपने से सेल्फ मेडिकेशन अपना के आए हैं फिर डॉक्टर के पास और कंडीशन वर्स्ट हो जाता है, तो केसेस ऐसे कितने देखने को मिलते हैं डॉक्टर? हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आपके सपोज़ 1 या 2 जगह है, तो वो पेशेंट खुद से दवाई लगा के हो सकता है थोड़े दिन में वो ठीक हो जाए। लेकिन जब उसके ज़्यादा हुँ, बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ़ एक टॉपिकल मेडिसिन ऊपर-ऊपर बस दवाई लगा के काम चलाओ। तो उसमें पेशेंट की कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार एक कंडीशन होता है जिसे हम एरिथ्रोडर्मा कहते हैं। एरिथ्रोडर्मा होता है जी, जब मोस्ट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया इज़ कवर्ड विथ स्केल्स एंड इट इज़ फुल्ली रेड। सो दैट इज एन इमरजेंसी हुँ, कंडीशन। तो कई बार पेशेंट्स एरिथ्रोडर्मा में जब समझिए कि इम्पेंडिंग एरिथ्रोडर्मा वाले स्टेज में हमारे पास आते हैं और तब तक वो अपने हुँ, आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स तो देखने को मिलते ही हैं। उससे भी ज़्यादा सोरियासिस में इस तरह का होता है कि पेशेंट अगर डॉक्टर के पास इनिशियली आते भी हैं, ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं, उसके बाद जैसे थोड़ा-सा थोड़े दिन ठीक रहे और फिर दोबारा से जब वो जी, ट्रीटमेंट करना होता है, तो वो खुद से शुरू कर देते हैं। Even that is very जी, जी, dangerous. Taking oral medication without a doctor's permission, guidance, and not doing the tests, investigations in between. जी, जी। तो
ऑफ कोर्स मतलब सबको लगता है कि हम जान जाते हैं हर चीज़, एक बार डॉक्टर के पास चले गए, प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर ने ही बताया है, तो कोई कंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर शायद उस दवाई से आपके शरीर में कुछ बदलाव आ चुका है ऑलरेडी जो आपने पहले लिया था और अभी उसकी ज़रूरत नहीं है आपके शरीर को। सो प्लीज़ हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लें, ना कि सेल्फ मेडिकेशन ऑप्शन अपनाइए। हम हमेशा कहते हैं आपको दिस कैन बी वेरी डेंजरस, अपने हेल्थ को रिस्क पे ना रखें। मूविंग अहेड डॉक्टर, ये सोराइटिक अर्थराइटिस क्या है? ये भी एक टर्म हम हमें सुनने को मिलती है, काफ़ी लोग जानना चाहेंगे। हाँ, सोरेटिक आर्थराइटिस प्रॉब्लम होता है जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ये क्या होता जी, है कि 25 टू 30%, 20 to 30% ऑफ पेशेंट्स ऑफ सोरियासिस आफ्टर मे बी 10 to 15 years कैन हैव आर्थराइटिक प्रॉब्लम। और कई बार 10% पेशेंट्स को हो सकता है कि स्किन की प्रॉब्लम कभी ना हो और आर्थराइटिस से ही शुरुआत हो, या फिर उनकी स्किन प्रॉब्लम्स बाद में भी आ सकती हैं। तो उसको हुँ, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, एक होता है जी, पेरिफेरल आर्थ्रोपैथी जिसमें हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, जिसमें हमारे हैंड्स हुँ, के डिस्टल वाले जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तरह की ये इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। दूसरी दूसरे को हम कहते हैं एक्सियल, जिसमें स्पाइनल बैक में आपको पेन हो सकता है। सेक्रो इलियक जॉइंट्स, आपके कमर में दर्द हो सकता है। और आप सुबह उठते हैं तो आपको स्टिफनेस हो सकता है। तो आपको किसी हुँ, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। इफ़ योर स्किन प्रॉब्लम इज प्रोमिनेंट, यू शुड फर्स्ट गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट। अगर आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो यू शुड गो टू अ रिमेटोलॉजिस्ट। इसमें भी कई बार होता है कि पेशेंट्स को पता नहीं होता है, वो ऑर्थो वाले के पास चले जाते हैं। तो राइट, आई थिंक पेशेंट शुड नो कि करेक्ट डॉक्टर किसके पास जाना है। एंड ऑब्वियसली जी, इफ यू बिल्कुल, हैव अ बिल्कुल। स्किन प्रॉब्लम एंड देन you have a consequent joint pain or problem, your dermatologist would guide कि whether he or she can treat या फिर आपको किसी और डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत है। राइट, राइट। ये अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट डिस्कशन, किसके पास जाना है? हम हमेशा सोचते रहते हैं या वी वंडर या हम सारे गूगल रिसर्च, अभी सब कुछ गूगल में मिलता नहीं है। हम बहुत ज़्यादा आजकल ट्रस्ट करते हैं गूगल पे, विकिपीडिया पे, बट सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू डेफिनिटली वोंट गेट इन गूगल टुडे। बट आज हम हमारे लाइफ में ये टॉपिक्स भी छेड़ रहे हैं एंड आई एम श्योर कहीं न कहीं ये बहुत आज हेल्पफुल होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं। वेल ये सोराइटिक आर्थराइटिस डॉक्टर जिसके बारे में हमने बात किया, ये कंडीशन कब हो सकता है? मतलब थोड़ा ज़्यादा जब हमें इसे प्रोलॉन्ग करते हैं तब हो सकता है या शुरुआती स्टेज से दिस कैन हैपन? हाँ, तो ये तो आप लोग थोड़ा-सा ये समझने वाली बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सोरियासिस वाले पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाएगी। और हाँ, 30% ऑफ पेशेंट्स ऑफ सोरियासिस कैन हैव some joint problem that can be mild हुँ, also, that can be a little bit more also, but वो हो सकता है हुँ, कि 15 से 20 साल के बाद भी हो। और बहुत कम जी, परसेंटेज में, ऐसा 5 से 10% भी होता है जिसमें कि आर्थराइटिस, जो बोन मतलब हड्डियों की इन्वॉल्वमेंट है, वो पहले शुरू हो जाती है और बाद में स्किन की हुँ, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट इज नॉट जी, रिलेटेड। ऐसा नहीं होता है कि जिसको ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा आर्थराइटिस हो। जी, जी। तो और डॉक्टर ये आर्थराइटिस में फिर भी से हम तो इसकी जो, हाँ, एक जो स्किन इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं होता है कि ये शुरुआत होते ही बहुत ज्यादा हो जाए। हो सकता है शुरुआत में हुँ, जो आपके लक्षण होते हैं उसमें बस ऐसा होगा कि आप सुबह उठे हो और आपको स्टिफनेस लगे, या आपके जो हुँ, हील्स के पीछे, जिसको हम एक्िलिस कहते हैं, उसमें हो सकता है कि जी, आप थोड़ी स्ट्रेच करें तो उसमें दर्द हो, जिसको हम एंथेसाइटिस हुँ, कहते हैं। तो शुरुआत में ये सब हुँ, प्रॉब्लम धीरे धीरे ही बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि इनिशियली आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा विच कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ। The only thing is राइट, you should know that this thing is happening and you should take quick हुँ, treatment. राइट, राइट। अगेन अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, अपने शरीर को समझना, अपने शरीर में बदलाव को समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत इग्नोर करते हैं ये सब चीज़ें, पर नहीं करनी चाहिए। इसी से रिलेटेड आई थिंक फिटनेस है डॉक्टर आजकल सोसाइटी का एक हिस्सा है जो फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक और हिस्सा है जो जंक खा रहे हैं, मॉडर्नाइज़ेशन बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को खराब करते हैं, नींद की कमी है उनके लाइफ़ में। तो
ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है आज के डेट में सोसाइटी। नाउ स्पीकिंग अबाउट सोराइसिस, हमने इससे थोड़ी देर पहले बात किया कि अपने शरीर को समझना। तो अक्सर जब लोग थोड़ा-सा डिप्रेस रहते हैं, चाहे काम को लेके हो, चाहे लाइफ को लेके हो, तो वो अपने शरीर को इग्नोर करने लगते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिस हैपेंस। ऑल्सो जो फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मैंने देखा है अपने लाइफ में, वो अपने शरीर को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने खाने को मेज़र करके खाते हैं कि इतना ग्राम ही खाना है आज, शायद शरीर को उसी चीज़ की ज़रूरत है। आज मुझे शरीर को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट देना चाहिए बिकॉज़ आज मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो देयर आर पीपल जो अपने शरीर को समझ रहे हैं। आजकल आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सोराइसिस टुडे, बट इतना अच्छा लग रहा है डॉक्टर आपके साथ बात करने में। आई कैन टोटली कनेक्ट टू व्हाटएवर यू आर सेइंग। आजकल लोग पीस भी बहुत ज़्यादा ढूँढ रहे हैं बिकॉज़ हमें पता है कि शांति का, स्ट्रेस फ्री लाइफ का एक लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उसी चक्कर में लोग आजकल पहाड़ों में घर ले रहे हैं और थोड़ा टाइम अपने आप के लिए दे रहे हैं। सो फॉर ऑल दोज़ पीपल जो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं कि अपने शरीर की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा-सा समझना चाहिए। ओबीस हो रहे हैं, मोटापा का भी सोराइसिस के लिए हमने जाना है आज आपसे कि ओबेसिटी कैन आल्सो बी अ रीज़न ऑफ सोराइसिस। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो डॉक्टर वो अगर निकलना चाहते हैं इस स्ट्रेसफुल लाइफ से, सबसे ईज़ीएस्ट वे आपका बेस्ट पॉसिबल एडवाइस क्या होगा? सी वो तो पता है क्या है जो आपने कहा अभी, बस समझिए कि वही चीज हम लोग अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इफ यू वांट टू गेट हुँ, रिड ऑफ सो मेनी मेडिकेशंस, इफ यू वांट कि आपकी डिजीज बार बार रिलैप्स ना करे, इफ यू वांट कि आपकी सीवियरिटी कम रहे, तो what you should do is you should maintain a healthy lifestyle. अब उस healthy हुँ, lifestyle में if you are obese, फिर तो आप सबसे पहले अपने डाइट से ही शुरू करो, डाइट एंड जी। एक्सरसाइज। एंड वी हैव सीन पेशेंट्स एक एज के बाद दे थिंक कि नहीं अब तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इससे अच्छा डॉक्टर आप चेंज करके हुँ, दवाइयाँ दे दो। तो जी ठीक है, राइट, हमारे पास तो बहुत कुछ है देने को, हम कुछ ना कुछ तो आपको देते रहेंगे, आपकी भी प्रॉब्लम 80% ठीक रहेगी। लेकिन आपके पास एक आपके अपने हाथ में है वो चीज़ ठीक करना। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आप अपनी डाइट को सही करो। डाइट में यू शुड टेक नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड, start taking less carbs, exercise more, again diet में take fresh fruits and vegetables, take a good protein diet, and fatty चीज़ें कम लो। तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर आपका खाने पीने का ही चीज़ ठीक से शुरू जी, हो। फिर जब आपकी थोड़ी जी। सी वेट में इम्प्रूवमेंट होती है और थोड़ी सी वेलबींग होता है, फिर यू कैन ऐड ऑन मोर हुँ, थिंग्स। उसमें है फिर राइट, एक्सरसाइज। Exercise again is very important for patients with psoriasis. So I'll say it is a definitely you should go for some type of exercise which you can do. It can be in any form. You can do brisk walking. If you feel you have joint problems, you can start with light yoga. You can start हुँ, with meditation. Anything you can start, but do it consistently. At least 5 days in a week. Do it for 40 minutes, 30 minutes initially, and then increase it to 1 hour. 1 घंटा टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालो, अपनी डाइट को जी। सुधारो। एंड समय टाइम से आप सो और समय से उठो, तो फिर ही आपको लगेगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती चली जा रही हैं। राइट, राइट। वेल, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सुनने में बड़ी बेसिक लगती हैं, पर अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहना और जैसे हम बड़े बड़े हुए हैं बस उसी प्रकार लाइफ़ को बिताना। हम अक्सर बड़े होते-होते भूल हैं जो हमने सीखा था, हमारे घर के खान-पीन अपनाना, हमारे बेसिक घर का डाइट दाल-चावल वही एक कटोरी सब्जी वही खाना और ज़्यादा बाहर के खाने, ज़्यादा मॉडर्नाइज़ेशन नहीं अपनाना। आजकल मैक्सिमम इश्यूज़ इसी से हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोराइसिस के बारे में और वी आर इन लाइव विद डॉक्टर अंजू झा। वी आर टॉकिंग वेरी बेसिक टुडे और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज हो रहा है। आई एम श्योर ऑल द व्यूअर्स आर एब्सोल्युटली एन्जॉयिंग this session. Also, Doctor, moving ahead with the same topic, हमें पता है कि बीमारी हो या कंडीशन हो कुछ भी हो, एक बीमारी से दूसरी बीमारी शुरू होने की चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो सोराइसिस के साथ ऐसा कुछ है कोई और ऑर्गन जो सोराइसिस अफेक्ट कर सकता है? हुँ।
हाँ, बिल्कुल है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब भी एक सोरियासिस का पेशेंट होता है, ये आज से 10 साल पहले हम नहीं करते थे, लेकिन अब है कि वी स्क्रीन ऑल द पेशेंट्स फॉर देयर लिपिड प्रोफाइल, वेदर दे हैव हम्म मेटाबॉलिक सिंड्रोम और नॉट। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी हम हम्म देखते हैं उसकी शुगर लेवल्स तो ठीक है, अगर शुगर लेवल्स भी ठीक हैं तो उनकी फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम्म देखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार होता है कि जी पेशेंट देखने में बिल्कुल नॉर्मल हो और फिर भी उसको डिसलिपिडीमिया हो सकता है, जिसमें उसकी लिपिड प्रोफाइल हम्म ऑल्टर्ड होती है, उसकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हो सकती है, उनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हो सकती है, या उनकी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकती है। तो देखा गया है कि सोरियासिस वाले पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम्स, दे आर मोर प्रोन टू गेट कार्डियक प्रॉब्लम्स सूनर और लेटर। So they should be राइट aware of that. They should do proper monitoring, and they should take their treatment properly. Because अगर आप अपनी ट्रीटमेंट सही टाइम से ले रहे हो, सही से ले रहे हो, तो जो आपकी ये जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, उसकी मात्रा कम होती है और ये बाकी सिस्टम पे असर कम करती हैं। राइट राइट वेल इसी के साथ डॉक्टर मैं देख पा रही हूँ कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से आ रही हैं। पहला सवाल पूछती हैं पूजा विश्वकर्मा जो पूछती हैं कैन आई मैनेज सोराइसिस नेचुरली। अच्छा, हाँ, तो नेचुरली में तो मैं कहूँगी कि अगर आपके 1-2 पैचेज़ हैं और आप उस पे एक माइल्ड अपना टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा रहे हो, तो आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी सीवियरिटी ज़्यादा है, मॉडरेट है और सीवियर है, तो आप को तो कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। नेचुरली हाँ, हम्म नेचुरल चीज़ें आप अच्छे से करते हो और अपनी डाइट और इनको ठीक रखते हो, तो ऐसा है कि वो उन ओरल मेडिकेशंस की ज़रूरत कम से कम पड़े। लेकिन हम्म मेडिकेशन तो आपको लेना ही चाहिए इफ़ यू आर हैविंग मॉडरेट एंड सीवियर सोरियासिस। You cannot do राइट without राइट medication, and let your doctor say कि नहीं, now you don't need your medication, then only you can stop it actually. राइट राइट डॉक्टर फॉर पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई भी बीमारी थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है हील होने में। तो सोराइसिस के केस में भी ऐसा ही है। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है क्या बेस्ट पॉसिबल डाइट क्या बेस्ट पॉसिबल लाइफस्टाइल होगा उनके हाँ, लिए। तो ऐसा होता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी जो शुगर लेवल्स हैं वो ठीक रहनी चाहिए। उनकी HbA1c जो 3 मंथ्स की एक कंट्रोल बताती है कि वो चीज़ सही होनी हम्म चाहिए। अगर वो बढ़ी हुई हैं तो उनको पहले उन सब चीज़ों पे भी वर्क करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ ले रहे होते हैं और उनके लिवर में सपोज सूजन हो, उनके लिवर एंजाइम्स बढ़े हों, तब हमें उस हिसाब हम्म से उनके लिए ना धीरे-धीरे आप समझ सकते हो कि जो एक चॉइस ऑफ मेडिकेशन है वो धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। ऐसे जी पेशेंट्स में अगर बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉब्लम हो, उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनके लिवर एंजाइम्स भी बढ़े हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स भी है, तो फिर हमें देखना होता है कि फिर हम और क्या चीज़ दे सकते हैं, तब बारी आती है हम्म बायोलॉजिक्स की। तो इसीलिए हम्म मतलब डायबिटिक्स में थोड़ी तो मुश्किल है, लेकिन आप अपनी डायबिटिक को ही बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखते हैं, तो इट इज़ ईज़ी फॉर अस टू कंट्रोल द सोरियाटिक एस्पेक्ट आल्सो, द सोरियासिस प्रॉब्लम आल्सो। राइट डॉक्टर सोराइसिस का मोस्ट कॉमन ट्रिगर क्या है कौन सा चीज है जो वर्स्ट बना सकता है इसको। जो हम लोग देखते हैं सबसे कॉमनली, वैसे तो हम लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग बोलते हैं, बट आई थिंक स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सो राइट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, अभी रिसेंटली कोविड वी हैड फॉर 2 years, and then after that there were lot of stress factors, so lot of psoriasis can increase due to stress factors, and again because of smoking, drinking, एंड मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे कुछ पेन किलर्स होते हैं, कोई बीटा ब्लॉकर्स जो बीपी की मेडिसिन होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं हम्म जो कि इस प्रॉब्लम को एग्रवेट कर सकती हैं। जी प्लस जी मोटापा अपने आप में भी एक एग्रवेटिंग फैक्टर है, और डायबिटीज, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस की है अभी। राइट डॉक्टर आजकल लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर जाए तो लोग आजकल सुबह का धूप देखते नहीं हैं। हम देखते हैं कि रात को बहुत लेट सोते हैं नॉर्मली मोबाइल फोन्स की वजह से और सुबह तो उठते ही नहीं है लोग। बहुत सारे लोग हैं जो शायद 12 बजे के बाद उठ रहे हैं उनका तो दिन निकल गया फिर पूरा। तो धूप कितना जरूरी है फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। हाँ, क्या बताया आपने, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? धूप। सनलाइट। हाँ, सनलाइट, हाँ, ठीक है।
हाँ, बिल्कुल, सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट। और सन एक्सपोज़र इज़ गुड बिकॉज़ फोटोथेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। हम लोग जिसमें एक तरह हम्म। की ट्रीटमेंट होती है जो फोटोथेरेपी हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को यूवीए, यूवीबी, नैरो बैंड यूवीबी थेरेपी या पूवा थेरेपी दी जाती है। तो अगर आप ये सब थेरेपी नहीं भी कराते हो और डेली इफ यू गेट 15 to 30 minutes of good sun exposure, mostly it helps for psoriasis patients. So otherwise Right. also getting up early, maintaining a good diurnal rhythm is very important to reduce any type of stress. और बहुत Right. सारे psoriasis वाले patients अगर अपने आप को 15-20 minutes बाहर धूप में निकलते हैं तो it is beneficial for them. राइट, राइट। ऑल्सो डॉक्टर, आपने अपने लाइफ का बहुत साल दिया है सिर्फ पेशेंट्स के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो अब तक के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सोरायसिस का वर्स्ट केस क्या देखा है आपने? अच्छा, वर्स्ट केस मैंने एक ना प्रेगनेंसी फ्लेयर अप हुँ, ऑफ सोरियासिस, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा यू कैन से पस्चुलर सोराइसिस भी एक तरह का सोरियासिस है, जिसमें पेशेंट का हम लोग बोलते हैं बॉडी में लेक्स ऑफ पस, मतलब छोटे छोटे पस वाले दाने ऑन अ शीट ऑफ एरिदिमा, मतलब पूरा रेड हो जाता है स्किन, उसमें पस के छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। और समझो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा टाइम होता है जिसमें आप कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते हो। अच्छा, और भी एक चीज़ है सोरियासिस में हम लोग ओरल स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, ओरल स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। बस समझो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ही ऐसा कंडीशन है जो कि पहले होता था कि आप उसमें आप स्टेरॉइड्स दे सकते हो, लेकिन फिर वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था। बट फाइनली वी ट्रीटेड हर विद साइक्लोस्पोरिन, बट इट वाज वेरी हुँ, डिफिकल्ट। It is very at times difficult to take some decisions alone, but ठीक है, by taking help of other seniors and all I could treat her. but ठीक है, उनका प्रेगनेंसी ठीक ठाक चला, डिलीवरी भी ठीक से हो गई। अब उनका बेटा भी वो 10-12 साल का हो गया, लेकिन दैट पेशेंट इज अगेन अ वेरी रेगुलर पेशेंट। वो मेरे पास हर 3 महीने बाद आती है, उसकी सिवियरिटी उतनी हुँ, ज़्यादा होती है। तो फिर हर बार हुँ, उनको काउंसलिंग करना होता है, बार बार ही काउंसलिंग करना होता है, पेशेंट्स भी बेचारे थक जाते हैं मेडिसिन लेके। और आजकल नए हुँ, मेडिसिन तो आ गए हैं, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत महंगी जी। मेडिसिन ले। तो हुँ, मतलब हुँ, उसमें भी हमारा कहना है कि आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर इसीलिए भी आओ ताकि आपके धीरे धीरे हम मेडिसिन चेंज कर सके और बिल्कुल हुँ। कम मेडिसिन पे आपको ला सके और सेफर मेडिसिन पे ला सके, और आप अपनी रूटीन वाली चीज़ें, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस टाइम टू टाइम करवाते रहें। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड नॉट बी अफेक्टेड, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी गुड, because today we have so many things to offer that if someone is staying and not getting treated just because it is something which cannot be cured is not done actually. यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वी टोटली एग्री विथ यू ऑन दैट डॉक्टर। डॉक्टर, ये पेनफुल होता है और रीअकरेंस के चांसेस कितने रहते हैं सोरायसिस में? रीअकरेंसेस के चांसेस तो बहुत रहते हैं। कई बार पेशेंट्स को ऐसा हुँ, होता है कि किसी किसी खास मौसम में, जब मौसम चेंज होता है, ड्राइनेस, विंटर्स, चेंज ऑफ सीजन, उसमें एग्रवेट होता है या उसमें निकल के आता है। और कई बार जो पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली ऑन मेडिसिन होते हैं, तो उनके भी तो ऑलमोस्ट 80 to 90% आप समझ सकते हो कि बॉडी पे कोई लीजन नहीं होता है, अगला किसी को देख के पता भी नहीं चलेगा कि उनको सोरियासिस की प्रॉब्लम है। और रिलैप्स का तो ऐसा है कि अगर कोई दवाइयाँ बंद कर दे तो मे बी 3 मंथ्स 4 मंथ्स में उसको फिर से दोबारा से आ सकता है। तो राइट, इसीलिए राइट। हम लोग क्या चाहते हैं कि आप इतनी ही सेफ मेडिसिन पे आ जाओ। आजकल हमारे पास इतनी ही सेफ मेडिसिन है कि आप बस ओरल मेडिसिन हुँ। बहुत कम से कम मामूली डोज पे हो और आपकी बिल्कुल क्लियरेंस रहे। राइट, राइट। तो बेसिकली जितने भी व्यूअर्स अभी परेशान हैं, सोच रहे हैं, आपको ये समझना है कि शरीर है आपका, आपका पूरा लाइफ उसका ख़्याल रखना है। एक रूटीन फ़ॉर्म करना है आपको डेली। जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, सुबह उठ के डेली नहाते हैं, वैसे ही एक रूटीन बना लेना है फॉर द पीपल हू आर सफरिंग फ्रॉम सोरायसिस। डॉक्टर, एक और सवाल जो एक साइन ऑफ रिलीफ लाने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए आज। कैन सोरायसिस बी क्योर्ड और इट कैन बी कंट्रोल्ड? हाँ, psoriasis can be actually controlled. That is what we say कि it can be controlled. Controlled in the sense कि आप अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हो
और आपकी प्रॉब्लम इतनी ही कम है कि यू आर लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, आपके स्कैल्प में स्केलिंग नहीं हो रहा है, आपकी ओपन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके लिए आप को मेडिकेशंस तो वैसे रेगुलरली ही लेना है। और कई बार होता है बहुत कम हो जाए प्रॉब्लम और सीजन चेंज पे ही एग्रवेशन हो, तो फिर भी मतलब psoriasis is a condition where at least if it is moderate to severe, we cannot tell our patients to stop the medicines as such. So it Hmm. is a disease which Hmm. can be controlled very nicely, but cured, I would say, still no. राइट, राइट। डॉक्टर, अगला सवाल फिरोज खान से आता है। फिरोज खान, आई थिंक जवाब ऑलरेडी डॉक्टर ने दिया है, बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा टच कर पाए, बिकॉज वी वुड हाँ डेफिनेटली लाइक टू बिल्कुल। अटेंड ऑल द व्यूअर्स हु आर आस्किंग अस क्वेश्चन टुडे। फिरोज खान पूछते हैं, कैन सोराइसिस कॉज जॉइंट पेन? हाँ बिल्कुल, सोरियासिस कैन कॉज जॉइंट पेन। और मेरा कहना है कि एक सोरियासिस वाले पेशेंट को कभी भी अगर जॉइंट पेन होता है तो वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाए, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को चाहे पहले दिखा ले। वैसे अगर आपको लगता है आपकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम पहले थी और अब सिर्फ जॉइंट की प्रॉब्लम है, तो आप एक रोमेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही ज़रूर से दिखाएं, क्योंकि कई बार जी, जॉइंट प्रॉब्लम्स रिकरेंट अगर रहता है तो उसमें कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस भी आ जाते हैं, तो फिर राइट, आप ज़रूर से एक सलाह लें और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। राइट, राइट। डॉक्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम सोनिया, जो पूछती है, कैन आई एक्सरसाइज विद सोराइसिस? हाँ, यू कैन डेफिनेटली एक्सरसाइज विद सोरियासिस। सी सोरियासिस में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हो, इतनी सीवियर नहीं प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब 80% ऑफ केसेस में पेशेंट इज क्वाइट मोबाइल एंड दे कैन डू एक्सरसाइज, बट यू हैव टू चूज द टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग। अगर आपके सपोज बाय चांस जॉइंट में भी इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट पेन्स है, तो आपको लाइट एक्सरसाइज करना है, यू कैन डू योगा एंड ऑल। But if you have limited areas, then you can do brisk exercise also. Brisk walking you can do, you can play badminton, you can do cycling, you can do swimming, all these things you can do. राइट, राइट। विद दैट, बिफोर वी टेक अ लीव, डॉक्टर, कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने हमें इतनी देर तक देखा है आज? हाँ बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि आप लोगों को बस ये बता दूं कि जो सोरियासिस है, दिस इज अ क्रॉनिक इम्यून मेडिएटेड प्रॉब्लम। और जो इसकी इलाज होती है, जो इसकी ट्रीटमेंट है, वो हमेशा से आप लीजिए। आपके डॉक्टर्स हम्म, आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ लगाने वाली दवाई से ठीक हो जाएगी या आपको खाने वाली दवाई की भी ज़रूरत है। और जी, मोस्टली अगर खाने वाली दवाई की ज़रूरत है तो वो उसे उन्हें सेल्फ मेडिकेट ना करें, उन्हें आप हम्म, प्रॉपर इंटरवल्स पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, जो उसके साथ रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाएं। और ये तो हो गया पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अपार्ट फ्रॉम हम्म, दैट, ट्राई टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। जी, नथिंग कैन रिप्लेस अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। इफ यू डू दैट, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन बिल्कुल कम हो जाती हैं। आप अपना डाइट ठीक रखें, जंक फूड कम लें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, एक बैलेंस्ड डाइट लें, एंड सम मीन्स ऑफ एक्सरसाइज यू शुड फॉलो। यू शुड बी एट पीस, the stress factor should not be there. For that, any type of exercise you can do: brisk walking, swimming, aerobics, or anything which you like, and it should be done consistently, at least 5 days in a week. So राइट। these are the things I think it is very easy to follow, वेल, and you can do it. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थोड़ा सा अगर माइंड को आप लोग ट्रेन कर लेंगे, देन थिंग्स आर वेरी इजी। इट्स ऑल इन द हेड। हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज जो आपको मुश्किल लगती है वो बस आपके दिमाग में है। अगर आप कोशिश करेंगे और सच में सोचेंगे कि वो आपसे होगा, देन वो होना ही होना है। नेवर फील डिसअपॉइंटेड। कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत लाइए दिमाग में। ऑलवेज बी पॉजिटिव। And with that, that was our expert advice for today. And that was Dr. Anju Jha for all of us. Thank you so much, Doctor, for your valuable time. It has been a very, very informative session for our viewers today. And I'm sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from psoriasis. And in case they get to see such symptom, they now know what to do. It's always
better to suggest a dermatologist than self medication. Again, it was great to hear from you, doctor. We look forward to many more such sessions in coming time. Also, thank you, viewers, for your excellent participation. For latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Stay safe and stay healthy.